Assalamu alaikum. Here is Muhammad Asif, lecturer in the Department of Economics and Business Administration, University of Education, Lahore. Dear students, today our topic of discussion is conflict management. First of all, we will define what is conflict. Conflict is defined as a clash between individuals arising out a difference in thought process, attitudes, understandings, interests, requirements, and even sometimes perceptions. कॉन्फ्लिक्ट मीन कि जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की थिंकिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड को गलत और अपनी इन तमाम चीज़ों को ठीक समझने लगता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. In deeper sense, it will sometimes in perception कि जब एक इंडिविजुअल की परसेप्शन दूसरे इंडिविजुअल की परसेप्शन से डिफरेंट होती है तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. सिंपल वर्डिंग में जिसे हम क्लैश कहते हैं. देन नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. Conflict management is the practice of being able to identify and handle conflicts sensibly, fairly and efficiently. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट की रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम जो है उनको सॉल्व आउट करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं एफिशिएंटली उनको सॉल्व करने का नाम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है. इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वी कैन से दैट वी डिक्रीज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एट द सेम टाइम वी इंक्रीज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. Then we will discuss that types of conflict. Conflict can arise for a variety of reasons. Usually the conflicts you encounter in the workplace are these 6 types. Number 1, structural. Number 2, relationship. Number 3, interaction. Number 4, values and identity. Number 5, data or information. And number 6, cultural. Now we explain about the structure. In structural conflict, problems with the way a situation is set up, who is involved geographical and physical relationship, unequal power and authority, impact of underlying processes, impact of external events. For example, structured reason for conflict could be things such as difficulty setting time to meet with colleagues who are in different time zones. Another example of structural conflict is one person thinks they are in charge but other members of the group don't agree with him. The business processes take a lot of time to implement, so it is hard to get things done on time. Next is relationship. Often a cause of conflict is relationship conflict. Relationship conflict may arise from poor communication, stereotyping, misconception and time constraints. For example, relationship triggers for a conflict could resemble the following scenario. A couple of group members don't answer emails in a timely way, holding up progress for others. Another example is when someone assumes that a certain
person disability will prevent them from participating in a project without asking the person what they feel confident in doing. A supervisor moves up a deadline so that the group is under increasing time pressure. कि जब हमारे रिलेशनशिप किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ ठीक नहीं होते तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो जनरेट होता है, और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है. नेक्स्ट इज इंटरेक्शन. In this type of conflict, some people have not developed their skills in interacting with others. This can be a source of conflict, particularly when one needs are not met by others. Interaction challenges can lead to negative response such as avoidance and attack. कि जब कोई एक इंडिविजुअल सोशल नहीं होता या एक इंडिविजुअल के पास लैक ऑफ स्किल्स होती हैं कि वो इजीली दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जिसे हम इंटरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. जब ये इंटरेक्शन डिवेल्प नहीं हो पाती तो तब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को अवॉइड करता है. यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है. जो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक पर्सन की थॉट होती हैं, वो दूसरे पर्सन तक कन्वे ही नहीं हो पाती. या किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में समटाइम किसी एक इंडिविजुअल के पास सजेशंस होती हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट वो सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंडिविजुअल के काम नहीं आता. या वैल्यूएबल सजेशंस होती हैं या टीम वर्क में वो जो इनपुट होता है, इंटरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो इनपुट प्रॉपर जो है वो टीम को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आउटपुट जो होता है वो हमारा इफेक्ट होता है. नेक्स्ट इज value and identity. We all have different values and perceptions. When these do not align within a working group, or when they are challenged, they can cause conflict. For example, ये जो values और identity होती है, समटाइम्स इसमें एक इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीव्स भी इंक्लूड होते हैं, एंड समटाइम्स किसी इंडिविजुअल्स के पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज भी होते हैं. इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेथड है, दैट इज मिसअलाइनमेंट विद द पर्सन पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज. कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई टीम, कोई ग्रुप जिसमें वो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसके बिलीव्स, उसकी वैल्यूज़, उसकी आइडेंटिटी से अलाइन नहीं कर रही, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट को हम वैल्यू एंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. कि मिसमैच ऑफ द वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस जब अराइज होती हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज डेटा और इंफॉर्मेशंस. व्हेन एन इंडिविजुअल हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन cause considerable conflict in the workplace. सिंपल सी एग्जांपल है कि जब एक ही टीम में दो डिफरेंट मेंबर्स को दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है. फॉर एग्जांपल, एक टास्क को करने के लिए एक
मेंबर को कुछ और इंस्ट्रक्शन मिलती हैं और दूसरे मेंबर को कुछ और इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। ये जो कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशंस हैं, एक्चुअली दीज आर द रीज़न फॉर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द एम्प्लॉइज। कि एक मेंबर को कुछ और गोल्स मिल रहे हैं, उसी ही टीम के दूसरे मेंबर को कुछ और गोल्स मिल रहे हैं, तो उनकी जो वर्किंग एरिया है या उनके जो काम करने का तरीका है वो कभी भी अलाइन नहीं होगा। जब एम्प्लॉइज़ को इस किस्म की कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी, या जब एम्प्लॉइज़ को आप डबल माइंडेड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होता है ये ड्यू टू मिसकॉन्सेप्शन, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट इज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। Cultural conflict arises when there is misunderstanding of group norms, confusion over language and communication styles, or underlying trust is missing. फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके आया है और उसने न्यू ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, तो उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर्स होंगे उनमें कंपल्सरी जो है वो डिफरेंस होगा। जब लोग एक बैकग्राउंड को छोड़ के दूसरे बैकग्राउंड की ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बैरियर होते हैं। वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर भी हो सकता है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, वहाँ पे और तरह के बैरियर भी हो सकते हैं। एक्चुअली ये जो डिफरेंस है इन बिटवीन द कल्चर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन, ये कल्चर जो है एक्चुअली एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हुआ है ये दो डिफरेंट कल्चर्स की नॉर्म्स और वैल्यूज़ की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय जिसने एक कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे उसके लिए कन्फ्यूजन और उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम अराइज होंगे, और ये प्रॉब्लम जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का सबब होंगे। These are the different types of conflict. Then next is how do you act in conflicts? कि जब किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो आपने इस सिचुएशन में इट मीन्स कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जो है वो एक्ट किस तरह से करना है। Major concern in a conflict. There are two major concerns in a conflict. Number one, achieving personal goals, and number second, keeping good relationship with the others. सबसे पहले कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सबसे मेन चीज़ जो आती है हमारे लिए वो हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं, कि हमने वो पर्सनल गोल्स जो है वो अचीव करने हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, in achieving personal goals, you have a goal that conflicts with another. It could be small or big. It could be important or not important for you. And number second, keeping good relationship with the others. It means under the conflict reason, you are wishing to achieve your personal goals, or you are keep trying to maintain the good relationship with others. If you want to achieving personal goals, then you have no concern with others. The ultimate purpose of you is only to achieve your goals.
इट मीन्स कि अगर आपने सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स ही अचीव करने हैं, देन आपको दूसरे लोगों से जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, आपको उनसे कोई कंसर्न ही नहीं है। आपने हर सूरत में अपने वो गोल अचीव करने हैं। जो सेकंड टाइप है, जो सेकंड कंसर्न है, वो हो अपने गोल से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप को आप वैल्यू दे रहे हैं। In keeping good relationship with the others, you may need to interact effectively with the other persons in the future. The relationship may be very important to you or may be of little importance. कि आप देखते हैं कि लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो इट मीन्स there are two major concerns when we are going to conflict management. Either you are achieving your personal goals or you are keeping good relationship with the others. The choice is yours. Conflict styles. Look this picture. This picture actually has conflict management styles. If you see on the picture, there is a picture. If you see on the slides, there are different pictures. Number one, the pictures of two tails. Number second is shark, then teddy bears, then fox, and then owls. Actually, these are showing the conflict management styles. Give a little concentration on this slide. The pictures on the slides give a message. If you see on two tails, it shows a conflict management style, which is withdrawing and avoiding style. It means कि हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिनमें से यहाँ हम 5 को डिस्कस करेंगे। और इस स्लाइड पे जो पिक्चर्स हैं, एक्चुअली वो एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल को शो कर रही हैं। जैसे कि टू टेल्स जो है वो हो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विच इज विदड्रॉइंग एंड अवॉइडिंग। इट मीन्स बैक फुट पे चलने जाना, वो शो करता है। अगर आप शार्क को देखें तो शार्क हमेशा जो है वो फाइट करती है, वो फोर्स करती है, वो कभी भी बैक फुट पे नहीं जाती। एंड दिस इज द एन अदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल विच इज competing and forcing. And then you look at teddy bears. Teddy bears always trying to keep happy other peoples. And the picture of teddy bear show the behavior of accommodating and smoothing. In the middle, there is a picture of fox, which shows compromising behavior. And it is one of conflict management style in which we make compromise with each other. And last picture is of owl, which shows the collaboration behavior of the individuals. Look at two tails, which shows the withdrawing
and avoiding behavior. Turtles withdraw into their shells to avoid conflicts. The people who show this behavior, they give up their personal goals and relationship. These people stay away from the issue over which the conflict is taking place and from the person they are in conflict with. They believe it is easier to withdraw physically or psychologically from a conflict than to face it. आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है तो वो एक ही मिनट में पीछे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोशल सर्कल में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनकी गलती हो या ना हो, वो एक मिनट में सॉरी कर लेंगे। अगर उनके साथ कोई आर्गूमेंट करे, अगर उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज करे, अगर उनकी बात को कोई एडमिट ना करे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो एट द सेम टाइम बैकफुट पे चले जाते हैं। एक्चुअली जो ऐसे लोग होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना ही नहीं चाहते। The avoiding style of conflict management often indicates a low concern for self and a low concern for others. In some cultures that emphasize group harmony over individual interests, avoiding a conflict can indicate a high level of concern for others. In general, avoiding does not mean that there is no communication about the conflict. Remember one thing, it is impossible not to communicate, even if you don't verbalize your point of view. Your action will show others something about how you are feeling. Even when we try to avoid conflict, we may be giving our feelings away through our verbal and non-verbal communications. कि अगर कोई पर्सन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से विदड्रॉ हो रहा है या अवॉइड हो रहा है और उसने वर्बली कुछ भी नहीं कहा, तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, उसका जो बिहेवियर होगा, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, वो एक्चुअली कुछ ना कुछ वहाँ पे मैसेज जो है वो छोड़ कर जाती है। तो ये सबसे फर्स्ट स्टाइल है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, जिसमें पर्सन जो होते हैं वो विदड्रॉ करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर होते हैं, और वो बिल्कुल सिंपलेस्ट लोग होते हैं कि वो ना ही कोई शाउट करना चाहते हैं, ना ही वो फाइट करना चाहते हैं, ना ही अपने आर्गूमेंट पे जो है वो कोई लॉजिकल रीजनिंग देना चाहते हैं। सिंपली दे डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट विद अदर इंडिविजुअल। दिस इज शार्प। This show the competing and forcing behavior in conflict management style. जो लोग कंपीटिंग या फोर्सिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी बात को तस्लीम किया जाए। बाई फोर्स वो अपने आर्गूमेंट्स, बाई फोर्स वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो कंपीटिंग या फोर्सिंग बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, उनके नज़दीक गोल की जो इम्पोर्टेंस होती है वो रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा होती है।
अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो कंसर्न होते हैं। एक कंसर्न जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा कंसर्न जो है वो हमारा रिलेशनशिप होता है। अगर इन दो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल पे आप फोकस करें तो जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल था जिसमें विदड्रॉइंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट किया जाता था, तो एक्चुअली वो इंडिविजुअल का कंसर्न शो करता है टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। और अगर आप यहाँ पे कंपीटिंग या फोर्सिंग एटीट्यूड की बात करें तो एक्चुअली ये इंडिविजुअल्स के गोल्स अचीव करने की तरफ जो है वो एक पॉजिटिव सिग्नल्स है कि ऐसे लोग जो कंपीटिंग और फोर्सिंग बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं उनके नज़दीक उनके गोल्स की अचीवमेंट हर हाल में चाहिए। उनके नज़दीक जो रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस है वो कोई मायने नहीं रखती। एक्चुअली दे सीक टू अचीव देयर गोल्स एट ऑल कॉस्ट। कुछ भी हो जाए ये लोग अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। इनको लोगों की ज़रूरत, लोगों की वैल्यू, लोगों की थिंकिंग, लोगों की सजेशंस के बारे में कोई कंसर्न नहीं होता। दे हैव ओनली कंसर्न टू अचीव देयर गोल्स। दे डोंट केयर इफ अदर्स लाइक्स और एक्सेप्ट देम। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके बारे में क्या समझते हैं, इनको कोई कंसर्न नहीं होता। उनका इनका रिलेशनशिप, इनका सोशल सर्कल, इनके फैमिली रिलेशनशिप भी अगर डिस्टर्ब होते हैं तो दे हैव नो वरी अबाउट दैट। द competing style indicate a high concern for self and a low concern for others। क्लियर हो गया कि ये जो कंपीटिंग स्टाइल होता है इसमें 110% जो होता है वो सेल्फ कंसर्न होता है और 0% जो होता है वो कंसर्न फॉर अदर्स होता है। व्हेन वी compete वी आर स्ट्राइविंग टू win। कि जब हम compete कर रहे होते हैं एक्चुअली हमारा एक ही फोकस होता है कि हमने यहां से विन करना है। जब हमारे माइंड में ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पर्पस है और वो सिर्फ विन का है, तब हम दूसरे के एक्सपेंस और लॉस के बारे में कोई ख्याल नहीं करते। हमें सिर्फ ये कंसर्न होता है कि हमने यहां से प्रॉफिट अर्न करना है। हमारे प्रॉफिट अर्न करने से अगर किसी के एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं या किसी को लॉस हो रहा है तो कंपीटिंग और फोर्सिंग बिहेवियर में हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं होता। We can say the competing style also involve the use of power। कि हम फोर्सफुली अपनी बात जो है वो किसी पे मुसल्लत करना चाहते हैं, या समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पे यस सर वाला जो है वो कॉन्सेप्ट होता है कि बॉस ने जो भी बात करनी है उसको जो है आपने यस सर ही बोलना है। एक्चुअली दिस बिहेवियर इज कंपीटिंग और फोर्सिंग बिहेवियर। The competing style of conflict management is not the same thing as having a competitive personality। Competition in relationship is not always negative, and people who enjoy engaging in competition may not always do so at the expense of the other person's goals. But in workplace, competitions can be a challenge। It means there is a difference in between the competition in relationship
and the competition at workplace. कि जब रिलेशनशिप होता है वहाँ पे कंपटीशन होता है तो वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता, समटाइम्स वो इंजॉयबल भी होता है। वहाँ पे कभी भी जब रिलेशनशिप की बात हो हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी दूसरे का गोल जो है वो डिस्टर्ब हो। लेकिन अगर हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में एक अपॉर्चुनिटी है कि एक एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलनी है, तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सब के लिए वो अपॉर्चुनिटी सेम है और सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोशिश करेंगे कि प्रमोशन जो है वहाँ मिले। उस प्रमोशन को हासिल करने के लिए दे नेवर थिंक अबाउट अदर एम्प्लॉयज़। According to the competing or forcing behavior, these people assume that conflict are either won or lost and they want to be the winner. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे बिहेवियर के लोग जो होते हैं वो हर हाल में जीतना चाहते हैं और ये जीत होती है, this give them a sense of pride and achievement. And on the other side, losing give them a sense of weakness and failure. कि ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा विन विन स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं। ये जो जीत होती है या विन होती है ये इनके लिए रीज़न ऑफ प्राइड होती है और ये जो लॉस होता है या अगर कहीं पे वो लूज़ करते हैं तो एक्चुअली वो उसको कंसीडर करते हैं कि ये उनकी वीकनेस है या उनके लिए जो है वो फेलियर है। एक्चुअली दे ट्राई एंड विन बाय अटैकिंग ओवरपावरिंग, कि वो उस जीत के लिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इवन के यूज़ ऑफ पावर एंड यूज़ ऑफ फोर्स भी वो यूज़ करते हैं, बिकॉज द अल्टीमेट पर्पज फॉर देम इज ओनली टू विन इन ईच सिचुएशन। Look at teddy bears who always trying to keep happy to other peoples, and this behavior show the accommodating and smoothing management style of people. In accommodating, to teddy bears the relationship of great importance with their own goals are of little importance. It means कि ये जो इकोमोडेटिंग बिहेवियर होता है या इकोमोडेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल होता है इसमें जो इंडिविजुअल होता है उससे अपने पर्सनल गोल से ज़्यादा लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील होता है। इट मीन्स कि वो अपने प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों के लॉस के बारे में वरी ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली द नेचर ऑफ दीज पीपल इज़ दे वांट टू बी एक्सेप्टेड एंड लाइक बाय अदर पीपल। ये लोग जो होते हैं एक्चुअल ये सोशल ज़्यादा होते हैं, ये हमेशा दूसरों को खुश और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो ये अपने
पर्सनल गोल्स जो होते हैं वो साइड पे रखते हैं और लोगों की जो खुशियाँ होती हैं या लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं उनको फ्रंट पे ले आते हैं. These people think that conflict should be avoided in favor of harmony and that people cannot discuss conflict without damaging relationship. कि ये लोग जो होते हैं ये विश करते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे क्रिएट हो गया है तो उसको इस तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के साथ रिलेशनशिप जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए. These people think that if conflict continues, someone will get hurt and they could ruin the relationship. जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया कि ये जो इकोमोडेटिंग या स्मूथिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल पे बिलीव रखते हैं उनके नज़दीक लोगों की खुशियाँ जो होती हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है. वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके किसी भी एक्शन की वजह से उनकी किसी भी डिसीजन की वजह से कोई दूसरे लोग जो है हर्ट हों और उनके रिलेशनशिप जो हैं उनमें कोई भी रुकावट हो. Actually, at the end, if we say they give up their goals to preserve the relationship, it means these people always give importance to relationship, not to achieving their goals. The accommodating conflict management style indicate a low concern for self and a high concern for others. सिंपली इकोमोडेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल में जो इंडिविजुअल्स होता है उसका जो सेल्फ कंसर्न होता है वो बहुत लो होता है जबकि अदर कंसर्न जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. इसमें जो इंडिविजुअल होता है हर वक्त ट्राई करता है कि अपनी पर्सनल इनपुट से दूसरे लोगों को ओबलाइज किया जाए. इस सारे कॉन्सेप्ट के पीछे जो मोटिवेशंस होती है वो एक बहुत की रोल प्ले कर रही होती है. Because the people who accommodate because they think we are being generous, we are obeying or we are yielding. प्रोडक्टिव लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि हमने किस तरह से दूसरों की खुशियों को जो है वो टॉप पे रखना है. There is one another important thing in accommodating or smoothing, that is occasional accommodation. Occasional accommodations mean sometimes we accommodate people by saying it's okay, that you want to do these things, you can. This is very important by maintaining relationship with other peoples. And this is another conflict management style. Look at this fox. This shows the compromising behavior या compromising conflict management style. Foxes are moderately concerned with their own goals and their relationship with others. They believe in give and take. They seek a conflict solution in which both sides gain something, the middle ground between two extreme positions. They compromise, they will give up a part of their goal and relationship in order to find agreement for the common good. ये जो compromising conflict management स्टाइल है ये सिंपली गिव एंड टेक है. इट मीन्स अगर दो पार्टीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है तो एक पार्टी जो फर्स्ट पार्टी है वो कहती है कि कुछ मैं जो है गिव अप की तरफ जो है मैंने जाना है और दूसरी पार्टी को भी
वो कहा जाता है कि कुछ वो गिव अप की तरफ जाए, ताकि जो इंटरेस्ट है उसका कोई एक्सट्रीम लेवल नहीं होता, बल्कि इन द मिडल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं या हम वो लास्ट एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ट्राई करें कि जिसमें अपनी पर्सनल अचीवमेंट और रिलेशनशिप था, तो यहाँ पे सम टाइम्स लोग जो होते हैं जब वो कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ अपनी अचीवमेंट, कुछ अपने गोल्स जो है वो छोड़ देते हैं ताकि वो अपना जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर सकें। इट मीन ये जो कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर होता है ये ना ही 100% अचीवमेंट ऑफ गोल्स होती है और ना ही 100% टूवर्ड्स द रिलेशनशिप होता है, बल्कि कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल इन बिटवीन अचीवमेंट्स एंड रिलेशनशिप होता है कि सम पोर्शन जो होता है वो अचीवमेंट जो है वो हासिल की जाती है और रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो अपने जो रिलेशनशिप होता है दूसरे लोगों के साथ उनको मेंटेन करने में यूज़ होता है। द कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल शोज अ मॉडरेट कंसर्न फॉर सेल्फ एंड अदर्स and may indicate low investment in the conflict or the relationship. Even though we often hear that the best way to handle a conflict is to compromise. कि जो सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का वो कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल होता है कि जिसमें आप कुछ पोर्शन जो है गोल्स को भी अचीव कर लेते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखते हैं। इफ वी से दैट कंप्रोमाइजिंग स्टाइल इज नॉट अ विन टू विन सोल्यूशन, कभी भी कंप्रोमाइजिंग जो होता है वो जस्ट बोथ साइड विन नहीं करनी होती, बल्कि ये जो कंप्रोमाइजिंग है इट इज़ अ पार्शियल विन एंड पार्शनल लूज सोल्यूशन कि एक साइड पे तो हम विन कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हमें लूज भी करना होता है। फॉर एग्जांपल जो पोर्शन हमने अपने गोल्स को अचीव करने का शो किया हुआ है वो हमारी विन है, एट द सेम टाइम हमने कुछ पोर्शन जो है वो लूज किया हुआ है ड्यू टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स। When we compromise, we give up some or most of what we want. It means कि जो भी हम चाहते हैं उसका 100% जो है वो हम नहीं हासिल करते, बल्कि कुछ ना कुछ जो है हम लीव करते हैं। It's true that the conflict get resolved temporarily, but lingering thoughts of what you gave up could lead to a future conflict. इट मीन जो कंप्रोमाइजिंग होता है ये टेम्परेरी होता है कि अब जो पोर्शन आपने अपने गोल्स का, अचीवमेंट्स का लूज किया है इन फ्यूचर वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लूज या आपके फेलियर को जो है वो शो करता है। बट उस फेलियर की जो कास्ट होती है आप उसको अचीव करते हैं अपने रिलेशनशिप को सेव करके। Look at this picture, owl, which show the collaborating conflict management style. Collaboration. In collaboration, individuals give highly value their own goals and relationship. They view conflicts as problem to be solved and seek a solution that achieves both their own and the other person's goals. This is very interesting. The people who are adopting collaboration conflict management style, they see
conflict as a means of improving relationship by reducing tension between two people. They're trying to begin a discussion that identifies the conflict as a problem to be solved. कि ये जो सिचुएशन है इसको इजीली हम कह सकते हैं कि ये विन टू विन सिचुएशन है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, जहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसका सलूशन ऐसा ढूंढा जाता है जिस पे दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री होती हैं। इट मीन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए कि जिससे रिलेशनशिप इन बिटवीन द पार्टीज, रिलेशनशिप इन बिटवीन द इंडिविजुअल वो इम्प्रूव हों और जो टेंशन है इन बिटवीन द इंडिविजुअल वो किसी न किसी लेवल तक जो है वो रिड्यूस हो सकें। We can say in the collaborating style involves a high degree of concern for self and others. Although the collaborating style takes the most work in terms of communication competency, it ultimately leads to win situation in which neither party has to make concessions because a mutually beneficial solution is discovered or created. कि कोलेबोरेशंस में कहीं पे भी दोनों पार्टीज जो होती हैं वो कहीं ये कंसीडर नहीं करती कि कहीं पे किसी ने विन किया है और दूसरी पार्टी ने कुछ पोर्शन जो है वो लूज किया है, बल्कि कोलैबोरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल में ऐसे डिसीजन की तरफ, ऐसे आउटकम की तरफ एग्री किया जाता है दो एट द सेम टाइम दोनों पार्टीज़ को सेटिस्फाई करे। अगर यहाँ पे हम कंसर्न की बात करें तो कोलैबोरेशन मैनेजमेंट स्टाइल में जो कंसर्न होता है वो इक्वल होता है। Concern for self or concern for others are equal in collaborating conflict management style. इसमें जो सिचुएशन होती है ये विन टू विन सिचुएशंस होती है कि आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी क्रिएट किया और नुकसान भी आपका नहीं हुआ। या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इन कोलैबोरेशन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल हम अपने गोल्स भी अचीव करते हैं और अपने रिलेशनशिप भी खराब नहीं करते। एट द सेम टाइम वी अचीव आवर गोल्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर पीपल। इन कोलैबोरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट we seeking solution that satisfy everyone। कि सॉल्यूशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों पार्टीज को बेनिफिट्स हों और कहीं पे भी किसी पार्टी का कोई लॉस ना हो। जब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अंडर कोलैबोरेटिंग मैनेजमेंट स्टाइल होती है तो people are not happy until a solution is found that both satisfies everyone's goals and resolve the tension and negative feelings that may have been present। कि वो कभी भी ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते कि जहाँ पे किसी की अचीवमेंट्स कम हो रही हों या जो टेंशन है वो इंक्रीज हो रही हों, बल्कि वी कैन से इन दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दोनों प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होते हैं। हम अपने गोल्स भी अचीव करते हैं और हमारा जो रिलेशनशिप होता है लोगों के साथ वो भी मेंटेन रहता है। इट मीन्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वी विन फ्रॉम बोथ एंड्स एंड दिस इज अ सिचुएशन। Avoiding style
in which it is neutral. Next is competing, which show the behavior of sharp. इसमें हमने पहले कहा कि वाइडिंग स्टाइल में जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का वो बिहेवियर लाइक अ टू टाइल होता है कि न्यूट्रल बिहेवियर होता है। और जो नेक्स्ट टाइप है कंपीटिंग, वो शो करती है जस्ट लाइक द बिहेवियर ऑफ शार्क कि या तो जीतना है या फिर हारना है। और कंपीटिंग में हमेशा विन टू लूज सिचुएशन होती है कि एक पार्टी जो है वो विन कर रही होती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो लूज कर रही होती है। नेक्स्ट इज इकोमोडेटिंग, विच शो द बिहेवियर ऑफ टेडी बेयर। टेडी बेयर जो होता है वो हमेशा अपने बेनिफिट से ज़्यादा लोगों की खुशियों का ख्याल करता है, इसलिए यहाँ पे सिचुएशन शो हो रही है कि इकोमोडेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल में जो सिचुएशन होती है वो लूज टू विन होती है। नेक्स्ट इज कंप्रोमाइजिंग, विच शो द बिहेवियर ऑफ फॉक्स, लूज टू लूज सिचुएशन। And then very effective conflict management style is collaborative, which show the behavior of an owl, win to win situation. I think you have now clear these situations. Now we will discuss about the best case scenario, या हम इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। मेरे ख्याल में अब आपको आइडिया हो गया है कि जो कोलैबोरेटिव बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन कोलैबोरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल the conflicting parties pool their energies to find creative answer to the problem। कि इसमें कोई भी पार्टी की जीत या हार से कंसर्न नहीं होता, बल्कि दोनों पार्टीज जो है वो कोशिश कर रही होती हैं कि किस तरह से अच्छी तरह से इनपुट दे के हम मैक्सिमम जो है वो आउटपुट जो यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। We can say the collaborating behavior is one of the best conflict management style. Other four are simply forms of conflict interventions. Collaboration acts less as a conflict intervention and more as conflict management। कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 5 टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल थे, जिसमें विदड्रॉइंग, कंपीटिंग, इकोमोडेटिंग, कंप्रोमाइजिंग और कोलैबोरेशन था। इनमें से जो फर्स्ट 4 हैं, दीज आर प्ले द रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरवेंशंस, एंड द लास्ट वन विच इज collaborating conflict management style, this is actually to conflict management। अगर हम कहते हैं कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, हमने कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट उसकी करनी है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कोलैबोरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है। कंक्लूजन, it may be noted that any of the 5 conflict resolution styles may be appropriate and effective depending on। हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है एक्चुअली उसके लिए सबसे जो बेटर तरीका है वो कोलैबोरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यह हमने ऊपर जो 5 डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल डिस्कस किए हैं, उनके लिए हमें देखना चाहिए कि वो सूटेबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी
specific situation according to the parties' personal conflict styles, the desired outcomes and time available. It means ये जो 4 पॉइंट हैं, सिचुएशन, personal conflict style, desired outcomes and time, these are very important when we are using any conflict management style. According to these points, we should choose to implement conflict management style. इट मीन्स इन जनरल हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बल्कि अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन जो इम्प्लीमेंट स्टाइल है वो सूटेबल और बेनिफिशियल हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन. One important thing, to understand the advantages and disadvantages of each method, you should remember that whenever you have a conflict, other people have it too. By respecting them and sincerely caring about resolving the conflict, you will using the best style. कि जब भी हमने ये सोचना है कि हमें जो प्रॉब्लम है, तो एट द सेम टाइम दूसरे इंडिविजुअल या दूसरी पार्टी को भी वही सेम प्रॉब्लम है, जब हम उनकी केयर, उनके एडवांटेजेस को ख्याल रखेंगे, तो देन वी शुड यूज़ द बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल. एंड एट द लास्ट देयर इज अ फूड फॉर योर थॉट्स. This is a simple situation of two businessmen. Read it and let's see the different ways that you people implement to address the problem, and then you people implement different conflict management style by resolving the problem, by resolving the conflict which is given in this example. Thank you very much.